Dear students, again welcome to video lecture series on surveying. Now today we are here to learn unit number 5 and that is all about theodolite surveying. So here in survey we have seen that for linear measurement we are using the tape and the chain. So we have learned the chain survey. The second most important entity that we have to measure, that is angle. So there also we have seen that how by using the compass we can measure the angle of a survey line with respect to north direction. But that compass survey, that is only meant for bearing of the line. Then also we have seen that the third entity that we have to observe in the surveying, that is the elevation or the height of the object. So for that we have learned the leveling survey. So by using the telescopic instrument like dumpy level or auto level, and by using the leveling staff we can measure the height of the object or height of the point or the elevation of the object. So that we have learned in leveling survey. But that not all about. So when you have to survey for a larger area, then there are some limitations are there. So when we are doing the leveling survey, we have to take the regular interval different points, and then we have to shift the auto level also, and there are so many limitations for the auto level also. Similarly, when we are doing a area for a larger survey, so there are limitations of the chain survey also. Then in the compass survey also there is no much accuracy was there in the measurement of the bearing with the help of compass. So with all this we have to again work for some instrument that we are helping us to make the survey little bit more accurate and then to cover the larger area. So in that the theodolite is one of the multi-purpose instrument. So we can use the theodolite for measurement of the bearing also. We can use the theodolite for measurement of the distance also. Then we can use the theodolite for leveling also. So here the one of the important instrument in the survey, that is multi-purpose instrument, and that is called about theodolite. So you can see this picture in the theodolite. So this is one of the instrument where it is having multi facility. So now in this lecture, in this unit we are learning about how we can utilize the theodolite survey for various purposes. Now whatever up till now we have seen, so we are going to measure the distance also. By using the theodolite we can also measure the bearing also, and we can carry out the traversing also, and we can also measure the height of the object also. So all that work can be done by the, so this is the one of the instrument, and actually this is vernier theodolite. This is vernier theodolite. Nowadays the advanced version of this instrument, that is called as total station. So that is also available in the market, and the operations are almost same as like our theodolite. So as a basic learner in the survey we must understand what are the operations of this type of multi-purpose instrument, that is vernier theodolite or transit theodolite. So in this lesson number 1 we are going to talk about the introduction of the theodolite. So here the component parts of the theodolite, then use of the theodolite, and then the fundamental lines of the theodolite, that we are going to understand. So इसके पहले हमने जो देखा है, लंबाई गिनने के लिए हम लोग टेप या चेन का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हमें कुछ लिमिटेशंस है, उसके अंदर हमको कुछ एरर्स आ रही है. सो वी कैन मेंटेन सम ऑफ द मोर एक्यूरेसी. सो ऐसा कुछ हमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए. और व्हेन वी आर मेजरिंग द बेयरिंग, देन वी हैव सीन दैट द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, लोकल अट्रैक्शन, and then the error due to the instrumental error, personal error, so many errors are there, and therefore the closing error occurs in the type of compass survey. So there also उसके लिए भी हमको कुछ ना कुछ सोल्यूशन चाहिए कि कंपास सर्वे हमारा ज़्यादा और एक्यूरेट ट्रैवर्सिंग हमको करते आना चाहिए. और लेवलिंग करते समय भी हमें बार बार लेवलिंग का इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करना पड़ता है. सो जब भी ग्राउंड अलग अलग अंडुलेशंस का है, सो एट ए वन लोकेशन हाउ वी कैन टेक द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इसके लिए भी हमको एक सोल्यूशन चाहिए. और ये सोल्यूशन के लिए हमें एक वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज ट्रांजिट theodolite or we can call it as like total station, that we can use. तो ये हम लोग कैसे इस्तेमाल करना है या इसके बारे में जानकारी हम लोग इस यूनिट में देखने वाले हैं. सो हियर
सो ऑल दीज आर द डिफरेंट फोटोग्राफ्स ऑफ द थियोडोलाइट. अब ये थियोडोलाइट का मतलब यहाँ पर यह है कि दिस इज वन ऑफ द मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट. सो यू कैन सी दैट डंपी लेवल के जैसा इसको नीचे एक ट्राइवैच है, देन उसके ऊपर उसको फुट स्क्रू लगे हुए हैं, देन फुट स्क्रू के ऊपर अपर ट्राइवैच है, अपर ट्राइवैच के ऊपर यहाँ पर कुछ 2-3 स्क्रू की अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाई गई है. उसके बाद में यहाँ पर एक सर्कुलर यहाँ पर स्केल है इसके अंदर. सो देर इज ऑल्सो वन ऑफ द बबल ट्यूब ऑन दिस सर्कल, दिस इज हॉरिजॉन्टल सर्कल. देन उसके ऊपर में ऐसी एक वाई फ्रेम हमको दिखाई दे रही है, और ये वाई फ्रेम के बाजू में भी इसके अंदर एक टेलीस्कोप लगा हुआ है, और ये वाई फ्रेम को भी यहाँ पर एक वर्टिकल सर्कल लगा है. इस सर्कल को भी हमारे पास में यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब लगी है, और उसको देखने के लिए भी यहाँ पर 2 लेंसेस है. वैसे यहाँ पर भी 2 लेंसेज है इसको देखने के लिए. सो दिस टाइप ऑफ वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट. तो इसका भी ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये वाई फ्रेम जो है, ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूमती है. सो द इंस्ट्रूमेंट रोटेट्स इन 360 डायरेक्शन, and then also this telescope also rotate about the horizontal axis, so that also rotates about the horizontal axis. So all with this we have to do the sum of the operations. So you can see in another view, so this one of the telescope, इसको यहाँ पर eyepiece भी है, यहाँ पर उसको ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसको फोकस करने के लिए फोकसिंग स्क्रू भी है, और यहाँ पर एक उसको एक वर्टिकल सर्कल और एक हॉरिजॉन्टल सर्कल लगा हुआ है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थियोडोलाइट. सो दैट वी आर लर्निंग. अब यहाँ पर जैसा कि वर्टिकल सर्कल के ऊपर भी हमारी एक लेवलिंग स्पीड लेवल बबल ट्यूब या लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब लगी हुई है, वैसे यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल सर्कल के ऊपर भी हमारी एक बबल ट्यूब यहाँ पे लगी है, और इसको यहाँ पर एक नीचे और ऊपर में अलग अलग यहाँ पर स्क्रू दिए हैं. सो विथ बाय ऑपरेटिंग दिस ऑल दिस वी कैन कंडक्ट द डिफरेंट ऑपरेशंस रिक्वायर फॉर सर्वे, यानी डिस्टेंस गिनने के लिए, एंगल गिनने के लिए, मेजरमेंट बियरिंग गिनने के लिए या हाइट गिनने के लिए, सभी के लिए हम लोग टेलीस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट का ये मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट थियोडोलाइट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. सो हियर देयर आर डिफरेंट कंपनीज आर मैन्युफैक्चरिंग. ये एक कॉम्पैक्ट बॉडी वाला इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है. सो इसका थोड़ा सा ये ओल्डन स्टाइल वाला है यहाँ पर. सो ऑल दिस पार्ट्स आर ओपन. नाउ यू कैन सी दैट इन द वर्नियर, ये इसके अंदर यहाँ पर ग्रेजुएशन की जो स्केल है वो यहाँ पर ओपन दिख रही है. इसके अंदर भी ये वर्टिकल सर्कल है, यहाँ पर भी एक ग्रेजुएशन की स्केल वर्टिकल दिख रही है. इसको देखने के लिए यहाँ पर एक लेंस भी दिया है ताकि ये बारीक वाली रीडिंग हमको अच्छे से दिखाई दे. सो दिस टाइप ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर. यहाँ पर ये टेलीस्कोप के ऊपर हमारी बबल ट्यूब लगी हुई दिख रही है यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक ये हॉरिजॉन्टल सर्कल के ऊपर यहाँ पर भी एक बबल ट्यूब लगाई दिखाई दे रही है स्पीड लेवल. सो दिस टाइप ऑफ डिफरेंट मॉडल्स आर अवेलेबल, एंड विथ दिस टाइप ऑफ मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट वी कैन कैरी आउट द थियोडोलाइट सर्वेइंग. सो नाउ वी विल, हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में जरा समझेंगे. सो देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ द थियोडोलाइट. तो सबसे पहले तो जैसा हमारे ऑटो लेवल का या डंपी लेवल का ट्राइपॉड का स्टैंड होता है, उस प्रकार के स्टैंड के ऊपर हम लोग इसको यहाँ पे लगाते हैं. सो वी आर माउंटिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन द ट्राइपॉड. सो हियर यू कैन सी दैट देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स. तो अब यहाँ पर सबसे पहले ये नीचे उसको एक ट्रायंगुलर प्लेट लगी है और ये एक ऊपर है. सो लोअर प्लेट एंड अपर प्लेट, दिस टाइप ऑफ 2 अपर ट्रायंगुलर प्लेट्स आर देयर, और ये दोनों के बीच में यहाँ पर फुट स्क्रू लगे हुए. सो यू कैन सी हियर. सो दीज आर द तो ये वाली नीचे की प्लेट हो गई हमारी, ये वाली इतनी. सो हियर वी विल ड्रॉ सम ऑफ द डायग्राम. सो ये जो नीचे वाला पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा ट्राइपॉड का स्टैंड. सो ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड यू कैन यूज दिस. अब उसके ऊपर ये वाली एक नीचे की प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट, और ये प्लेट के ऊपर ये ऊपर का ये जो स्टैंड है, ये वाली भी ऊपर की प्लेट है, ये प्लेट लगी हुई है. सो लाइक दिस. सो दीज आर द 2 प्लेट्स आर देयर. सो दिस इज लोअर ट्राइवेट प्लेट, दिस इज अपर ट्राइवेट प्लेट, और ये दोनों के बीच में स्क्रू लगे हुए हैं. सो ये वाले स्क्रू यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं. ये वाला यहाँ पर स्क्रू है और एक ये वाला स्क्रू है. सो देयर आर 3 फुट स्क्रूज आर देयर. ऐसे 3 फुट स्क्रू है. सो दीज आर कॉल्ड एज द फुट स्क्रू. अब ये फुट स्क्रू को घुमा के हम लोग ये दोनों प्लेट को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि इसको लेवलिंग करने के लिए ये तीनों फुट स्क्रू का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं. सो लोअर ट्राइवैच, अपर ट्राइवैच, यानी नीचे की ट्रायंगुलर प्लेट, ऊपर की ट्रायंगुलर प्लेट, और ये दोनों के बीच में 3 फुट स्क्रू लगे हुए हैं, ये दोनों प्लेट को बराबर एडजस्ट करने के लिए. अब ये जो पार्ट है, इसके ऊपर में हमारा ये पूरा रोटेशन वाला जो वाई फ्रेम लगा हुआ है. सो दिस इज द वाई फ्रेम एक्चुअली, एंड दिस इज द वाई फ्रेम. तो ये वाई फ्रेम है और इसके साथ में ये हॉरिजॉन्टल प्लेट लगी हुई है. सो दिस टाइप ऑफ वाई फ्रेम वाज अटैच्ड, और यू कैन से इट एज ए फ्रेम और वाई फ्रेम.
और ये वाई फ्रेम के बीचों बीच बराबर सेंटर एक्सिस है, और ये सेंटर एक्सिस में हमारा ये जो टेलीस्कोप है ये यहाँ पे लगा हुआ है। सो दिस इज वन ऑफ द आवर टेलीस्कोपिक ट्यूब, एंड ये यहाँ पर उसको यहाँ पे फुट स्क्रू फोकसिंग स्क्रू लगा हुआ है। सो हियर अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट ये जो ऊपर की प्लेट है इसके अंदर ऐसा पूरा गोल गोल घूम सकता है। सो इट इज रोटेटिंग अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट पूरा गोल गोल घूम सकता है ये वाई फ्रेम, और ये वाई फ्रेम के अंदर टेलीस्कोप गोल गोल घूम सकता है। सो टेलीस्कोप इज रोटेटिंग, ये वाला जो टेलीस्कोप है ये सेंट्रल हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है, और ये जो वाई फ्रेम है ये वाई फ्रेम ये हॉरिजॉन्टल सर्कल के प्लेट के साथ में पूरी गोल गोल घूमती है सेंट्रली। सो देयरफॉर थियोडोलाइट इज रोटेटिंग अराउंड द वर्टिकल एक्सिस आल्सो, एंड द टेलीस्कोप इज रोटेटिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस आल्सो। तो 360 डिग्री में ये टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट घूमता है, और ये जो वाई फ्रेम है ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट 360 डिग्री में घूमती है। इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग किधर भी घुमा सकते हैं। सो ये टेलीस्कोप को भी हम लोग हॉरिजॉन्टल रखने के बजाय डाउन भी कर सकते हैं, अप भी कर सकते हैं। सो ऑल दीज ऑपरेशंस आर पॉसिबल। अब यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ये वाला हॉरिजॉन्टल सर्कल जो है इसके अंदर यहाँ पर हमारे वर्नियर स्केल लगी होती है। तो इसको दो इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर है, एक है इसके अंदर अपर प्लेट, यानी इसके अंदर दो पार्ट है एक्चुअली, दिस इज अपर प्लेट एंड दिस इज लोअर प्लेट। तो ये लोअर प्लेट और अपर प्लेट दो पार्ट इसके अंदर इसलिए है कि इसके अंदर दो अलग अलग प्रकार की ग्रेजुएशन की सर्कल की स्केल है। तो एक हमारी मेन स्केल है और दूसरी हमारी वर्नियर स्केल है। तो दोनों भी वर्नियर स्केल इसके अंदर फिट है, और वो दोनों भी प्लेट एक में के ऊपर रखी हुई है ताकि वो एक साथ में भी घूम सकती है और अलग अलग भी घूम सकती है। इस प्रकार से दोनों भी प्लेट लगी हुई है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट का सेटिंग यदि करना है तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है इसके ऊपर इसका बराबर हॉरिजॉन्टल प्लेट ऐसी लेवल रहना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए। तो इसके लिए इसके ऊपर यहाँ पर ये हमारी बबल ट्यूब लगी हुई है, यानी यहाँ पे आपको ये इधर में दिख रही है, उधर से ये यहाँ पर ऐसी इधर में लगी हुई है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल है इसके ऊपर की स्प्लिट लेवल है उसको बराबर सेंटर में लाके आप लोग वो प्लेट को हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं। सो फॉर दैट दिस बबल ट्यूब वी हैव टू यूज। अब इसके ऊपर ये जो वाई फ्रेम आ गई हमारी, ये वाई फ्रेम के अंदर ये है हमारा टेलीस्कोप। सो देयर आर थ्री कंपोनेंट, वन इज द टेलीस्कोपिक ट्यूब, अदर है उसको यहाँ पर सामने लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और इधर से उसको देखने के लिए आई पीस होता है। सो आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस आर देयर, और इसके बीच में भी अंदर में अपने यहाँ पे क्रॉस हेयर होती है, जैसा हमारे ऑटो लेवल के अंदर होती है वैसा इसके अंदर हम लोग देखेंगे। सो यू विल फाइंड आउट वन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रॉस हेयर। सो दिस इज द क्रॉस हेयर फिटेड इनसाइड द टेलीस्कोप, और इसको फोकस करने के लिए हमारे पास में ये है फोकसिंग स्क्रू। सो विद दिस फोकसिंग स्क्रू यू कैन फोकस द ऑब्जेक्ट। अब ये जो थियोडोलाइट का जो टेलीस्कोप है ये टेलीस्कोप रोटेट हो रहा है ऐसा। अब ये रोटेट होने के लिए यदि उसको हमको लॉक करना है तो लॉक करने के लिए यहाँ पर उसको एक क्लैम्प स्क्रू है, यानी ये वाला। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज क्लैम्प स्क्रू, यानी ये क्लैम्प स्क्रू की जगह इसको टाइट कर देंगे तो ये टेलीस्कोप घूमेगा नहीं हमारा। सिमिलरली दिस अनदर वन दिस इज फोकसिंग स्क्रू, फोकसिंग स्क्रू, एंड दिस इज एक्चुअली टेलीस्कोप, और ये वाला हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये जो नीचे की प्लेट है सो दिस इज एक्चुअली द हॉरिजॉन्टल प्लेट, सो एच प्लेट और एच हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल है ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है और टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। अब ये जो टेलीस्कोप के उधर वाला जो सर्कल है, सो ये सर्कल के ऊपर भी हमको यहाँ पर एक बबल ट्यूब होती है। सो दिस इज अल्टीट्यूड बबल ट्यूब, ये और ये वाली होती है प्लेट बबल ट्यूब, यानी हॉरिजॉन्टल सर्कल के ऊपर जो बबल ट्यूब लगी है सो दिस इज कॉल्ड एज प्लेट बबल ट्यूब। और जो ऊपर में यहाँ पर पीछे में लगी है वो ये वाले सर्कल के पीछे में लगी है, सो दैट इज कॉल्ड एज अल्टीट्यूड बबल ट्यूब। सो बोथ टू बबल ट्यूब्स आर देयर, और ये बबल ट्यूब को देखने के लिए यहाँ पर एक मिरर भी लगा होता है, सो दैट वी विल सी अंदर एक्चुअली ऑन द अनदर इंस्ट्रूमेंट, एंड देयर आर 2-3 स्क्रूज आर देयर। अब ये स्क्रू में से सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल को यहाँ पर एक विंडो है, यहाँ पे ओपनिंग है यहाँ पे, और इसके अंदर का रीडिंग हम लोग देख सकते, और उसके ऊपर ये वाला एक लेंस लगा है। सो विद दिस लेंस हम लोग ऑब्जर्वेशन देख सकते, इसके अंदर का रीडिंग देख सकते हैं। ऐसे दो लगे हैं उसको,
यानी इधर है और इधर है 180 डिग्री के फर्क में दो विंडो है, यहाँ पे दो ओपनिंग है और उसके अंदर की जो स्केल है वो स्केल को रीड कर सकते हैं हम लोग ये लेंस से। सो देयर आर टू विंडोज आर देयर, तो एक विंडो हमारी ए होती है और दूसरी विंडो होती है बी। सो देयर आर टू ऑब्जर्वेशन विंडो इन द थियोडाइट। अब इसके अलावा यहां पर ये हॉरिजॉन्टल प्लेट को यहां पर और एक लेंस लगा है। सो दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल प्लमेट, सेंट्रल प्लमेट। यानी यहां से हम लोग देख सकते हैं अंदर, जब अंदर देखते हैं हम लोग तो ये जो इंस्ट्रूमेंट का सेंटर है ना, नीचे का एग्जैक्ट सेंटर, वो नीचे का सेंटर हमको यहां पर दिखता है। सो टू ऑब्जर्व द सेंटर पॉइंट ऑफ द थियोडाइट वी कैन वॉच थ्रू दिस सेंट्रल प्लमेट। तो ये सेंट्रल प्लमेट में से हम लोग देख सकते हैं और ऐसा राइट एंगल में मिरर होता है उसके अंदर और नीचे का पॉइंट हम लोग उससे देख सकते हैं। सो दीज आर द कंपोनेंट पार्ट। नाउ अब ये जो प्लेट है इसको यहाँ पर हमको एक नीचे में स्क्रू दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये ऊपर में स्क्रू दिखाई दे रहा है। सो देयर आर टू स्क्रूज आर देयर। तो ये जो ऊपर की प्लेट और नीचे की प्लेट जो हमारी है यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर दो प्लेट है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। उसको लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पर दो स्क्रू है। सो वन इज कॉल्ड एज अपर क्लैम स्क्रू और ये नीचे वाला जो होता है वो दैट इज कॉल्ड एज लोअर क्लैम स्क्रू। सो यहाँ पे ये ऊपर की प्लेट और नीचे की प्लेट इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे दो स्क्रू हमको होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। सो ऑल दीज आर द कंपोनेंट पार्ट्स वी हैव टू यूज और इसके साथ में फिर हम लोग अलग अलग ऑपरेशंस कर सकते हैं। सो ऑल दीज कंपोनेंट पार्ट्स आर देयर दैट वी विल सी अगेन in the next part, in the next slide, so you will get it more clear. So here I can again we will recall the different component parts of the theodolite. So in the side view, ये हमने पिछले वाले में देखा था, हमने थोड़ा सा उसका व्यू अलग था हमारा। अब हम लोग यहाँ पे यदि साइड व्यू में देखेंगे so you can again see that here the different component parts are there. So number one that is called as telescope. तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये टेलीस्कोप हो गया हमारा। सो दिस इज द आवर टेलीस्कोपिक ट्यूब नंबर एक। देन नंबर टू इज द ट्रूनियन एक्सिस। नाउ दिस इज द सेंट्रल पॉइंट। सो दिस इज एक्चुअली द ट्रूनियन एक्सिस। सो दिस ट्रूनियन एक्सिस अबाउट विच द टेलीस्कोप रोटेट। सो दिस इज नंबर टू। देन नंबर थ्री इज द वर्नियर फ्रेम। सो हियर दिस पार्ट दिस इज एक्चुअली द वर्नियर फ्रेम। ये इसको पकड़ने के लिए ये जो सर्कल है, ये सर्कल को पकड़ने के लिए ये फ्रेम लगी हुई है यहाँ पे हमारी। सो फॉर दिस सर्कल दिस इज हॉरिजॉन्टल फ्रेम। सो दैट इज नंबर थ्री। नंबर फोर इज स्टैंडर्ड ए फ्रेम। तो ये हमारी ए फ्रेम है जिसके ऊपर हमारा ये इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। सो दिस इज आवर ए फ्रेम जिसके अंदर ये सेंटर पॉइंट्स के ऊपर ये टेलीस्कोप हमारा रोटेट हो रहा है। देन नंबर फाइव इज द अपर प्लेट। सो हियर अगेन यू कैन सी दैट दिस इज वन ऑफ द प्लेट। ये अपर प्लेट है हमारी, ये अंदर में ऐसी जा रही है यहाँ तक का एंड दिस इज द वन ऑफ द पार्ट दैट इज अपर प्लेट नंबर फाइव। एंड देन नंबर सिक्स इज द लोअर प्लेट। अब इसके नीचे और एक प्लेट है हमारी ऐसी यहाँ पे एंड दिस प्लेट इज ऑल्सो गोइंग अप टू हियर। So this is number 6 lower plate. Then number 7 is the vernier. Now on this plate, ये प्लेट और ये प्लेट के ऊपर वर्नियर का ग्रेजुएशन होता है। So on the top and bottom plate there are vernier markings are there. Then number 8 is the plate level. अब ये प्लेट को ओरिजेंटल सर्कल को लेवल करने के लिए यहाँ पर हमारे पास में एक ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों भी डायरेक्शन में बबल ट्यूब है हमारे पास में। सो दिस इज वन ऑफ द स्प्लिट लेवल, दिस इज वन ऑफ द स्प्लिट लेवल। देन नंबर 9 आर द फुट स्क्रू। यहाँ पर ये हमारे फुट स्क्रू लगे हुए हैं ऐसे। सो अपर ट्राइवैच और लोअर ट्राइवैच ये दोनों को भी एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर अपने पास में फुट स्क्रू लगे हुए हैं। सो दैट 3 फुट स्क्रू को घुमा के हम लोग उसको इंस्ट्रूमेंट को लेवल कर सकते हैं। देन नंबर 10 इज द लेवलिंग हेड। अब ये जो है ये वाला पार्ट, इसके अंदर हमारा ये इंस्ट्रूमेंट का ऊपर का जो ए फ्रेम है ये फिट होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज लेवलिंग हेड, ये वाला। तो ये ऊपर के पार्ट में ये पूरा सेटअप लगा हुआ है। सो दिस इज रोटेटिंग अबाउट द वर्टिकल एक्सिस और इसके यहाँ पे नीचे उसको यहाँ पर हुक लगा है। सो ये हुक में से हम लोग प्लम बॉब को
ऐसा टांग सकते हैं ताकि हमारा एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पर है, हमारे स्टेशन का सेंटर पॉइंट कहाँ पर है, वो हम लोग ये हुक में से नीचे से बराबर देख सकते। देन नंबर 11 इज द ट्राइपॉड हेड। सो हियर दिस वन, ये जो है हमारा ये ट्राइपॉड का स्टैंड है हमारा, उसका हेड है, और उसको हमारे ऐसे ये नंबर 12 जो है ये है हमारे लेग, और इसके ऊपर ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पर थ्रेड के जरिए हम लोग यहाँ पर फिट करते ऑन द ट्राइपॉड। एंड देन 13 इज द प्लम्ब बॉब। सो ये वाला जो हुक है इसका सेंटर का, यहाँ से हम लोग एक प्लम्ब बॉब लटका सकते, तो वो प्लम्ब बॉब हमको नीचे का जो ग्राउंड पॉइंट है वो हमको यहाँ पर देगा। एंड देन नंबर 14 इज अल्टीट्यूड लेवल। अब ये जो टेलीस्कोपिक ट्यूब लगी हुई है इसके ऊपर हमारा एक और यहाँ पे स्पिरिट लेवल या बबल ट्यूब लगी होती है, ताकि इसका बबल सेंटर में लाके हम लोग ये टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल कर सकते। सो दैट 14 नंबर इज द बबल ट्यूब। एंड देन नंबर 15 इज द फोकसिंग स्क्रू। अब ये जो टेलीस्कोप है इसमें का ऑब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए आपके पास में यहाँ पर एक फोकसिंग स्क्रू से हम लोग ऑब्जेक्ट उसके अंदर का क्लियर कर सकते। एंड नंबर 16 इज द वर्टिकल सर्कल। ये वाला वर्टिकल सर्कल है जिसके ऊपर भी मार्किंग रहते हैं ऐसे ग्रेजुएशंस के। सो वर्टिकल एंगल हम लोग इससे गिन सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ व्यू इज देयर। सो बाय यूजिंग ये इस प्रकार का जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हमको ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल करना है। सो देर आर टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स आर देयर। वन इज एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड वन अनदर इज वर्टिकल सर्कल। तो हॉरिजॉन्टल एंगल गिनने के लिए हम लोग ये हॉरिजॉन्टल सर्कल का इस्तेमाल करते हैं, और इसको दो ओपनिंग होते हैं, एक इधर होता है एक दूसरा होता है उधर। सो वन इज कॉल्ड एज ए विंडो एंड अदर इज कॉल्ड एज बी विंडो। सिमिलरली ये जो वर्टिकल सर्कल है इसके ऊपर भी ऑब्जर्वेशन लेने के लिए दो विंडो होती है उधर से। सो एक हो गई हमारी सी विंडो और दूसरी हो गई डी विंडो। सो वेन एवर वी आर टेकिंग द एंगल ऑब्जर्वेशन, तो हमको हॉरिजॉन्टल एंगल ए और बी विंडो से मिलता है और वर्टिकल एंगल हमको सी और डी विंडो से मिलता है। दैट वी हैव टू रिमेंबर। देन अनदर ऑब्जर्वेशन यू कैन टेक, दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस। इसके अंदर की जो क्रॉस हेयर है इसका इस्तेमाल करके हम लोग स्टाफ रीडिंग ले सकते हैं लेवलिंग स्टाफ के ऊपर। सो इसका लेवल के जैसा भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं थियोडलाइट का। सो ऑल दैट यू कैन ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ थियोडलाइट। सो हियर द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज द पोजिशन ऑफ दिस थियोडलाइट। अब ये जो थियोडलाइट की पोजिशन है इसके अंदर सबसे पहले तो हमको ये जो टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप हमारा वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूमता है ऐसा। सो दिस इज द टेलीस्कोप एंड दिस वाई फ्रेम रोटेट्स बाय 360 डिग्री। सो ये जो 360 डिग्री का रोटेशन है ये रोटेशन हम लोग हॉरिजॉन्टल सर्कल के ऊपर देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यदि आपने इनिशियल रीडिंग 0 रखा तो आप उसको 90 डिग्री 180 डिग्री ऐसा घुमा सकते हैं उसको। सो दैट इज द वन ऑपरेशन, यानी हमारा टेलीस्कोप वर्टिकल एक्सिस के अबाउट पूरा गोल गोल घूम सकता है। देन अनदर इज दिस टेलीस्कोप रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये एक्सिस के अबाउट टेलीस्कोप भी घूमता है। तो उसका जो टेलीस्कोप का जो रोटेशन है वो हम लोग ये वर्टिकल सर्कल के ऊपर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। सो द रोटेशन ऑफ दिस टेलीस्कोप दैट वी आर ऑब्जर्विंग ऑन द वर्टिकल सर्कल, और ये जो ए फ्रेम का जो रोटेशन है so that we are observing on the horizontal circle. So like way we have to use. अब इसके अंदर भी जैसा ये जो ऊपर का जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है इसको हमको इसके अंदर की मेन स्केल और वर्नियर स्केल इसको हमको सिस्टमेटिकली ऑपरेट करके एंगल गिनते आना चाहिए। इसके लिए इसको मैंने आपको बताया कि एक यहाँ पर एक स्क्रू है नीचे में और एक यहाँ पर स्क्रू है। सो ये जो अपर प्लेट और लोअर प्लेट है हमारी वर्नियर स्केल की, इसके अंदर ऐसी अरेंजमेंट है। सो ये जो ऊपर का पार्ट है, नाउ दिस इज वन ऑफ द अपर प्लेट। ये प्लेट हमारी ऐसी अंदर गई है यहाँ पे। तो ऊपर का पार्ट घूम गया तो ये अपर प्लेट घूम रही है हमारी। तो अपर प्लेट के हिसाब से हम लोग एंगल कितना है मेन स्केल के ऊपर वो हमारा चेंज हो रहा है, वो हम लोग ले सकते हैं। अब इसके साथ में यदि नीचे में इसके लोअर प्लेट भी है, ये वाली लोअर प्लेट भी है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लेट। अब ये लोअर प्लेट जो है, ये लोअर प्लेट और अपर प्लेट ये दोनों भी एक में के ऊपर रखी हुई है। अब इसको दो स्क्रू है यहाँ पर, एक स्क्रू है साइड में यहाँ पर, ये है हमारा अपर क्लैम्प स्क्रू, और एक स्क्रू नीचे में है, ये है लोअर क्लैम्प स्क्रू। अब ये लोअर क्लैम्प स्क्रू हम लोग टाइट कर देते तो ये दोनों भी जो वर्टिकल अपर और लोअर है
ये दोनों भी लॉक हो जाएंगे, दोनों भी घूमेंगे नहीं फिर. सो बाय ऑपरेटिंग द लोअर क्लैम्प स्क्रू you can fix the rotation of the theodolite around the vertical axis. यानी अपर प्लेट, लोअर प्लेट या ऊपर की बॉडी कुछ भी हमारी नहीं घूमेंगी, इंस्ट्रूमेंट लॉक हो जाएगा हमारा. सो ये लॉक है लोअर क्लैम्प से. लेकिन आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ लोअर प्लेट जगह पे रखनी है और सिर्फ ऊपर का पार्ट ही घुमाना है. सो ओनली द अपर पार्ट वी वांट टू रोटेट और लोअर पार्ट हमारा लॉक रखना है. तो आप ये अपर क्लैम्प स्क्रू को भी लॉक अनलॉक कर सकते हो. तो यदि आपने ये अपर पार्ट को लॉक कर दिया, अनलॉक कर दिया, तो अनलॉक करेंगे तो सिर्फ ऊपर का पार्ट घूमेगा हमारा. सो इनिशियली हमारा जो थियोडोलाइट है उसका नीचे का क्लैम्प और अपर क्लैम्प एंड लोअर क्लैम्प, नीचे का क्लैम्प स्क्रू और ऊपर का क्लैम्प स्क्रू दोनों भी टाइट रहेंगे. तो टाइट रहने की वजह से इंस्ट्रूमेंट हमारा बिल्कुल भी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूमेगा नहीं, बिकॉज बोथ द क्लैम्प्स आर लॉक. अब सिर्फ हमने अपर क्लैम्प यदि खोला, ऊपर का स्क्रू खोला, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट ऊपर से घूमेगा. लेकिन ये नीचे की जो स्केल है वर्टिकल और लोअर प्लेट हमारी जगह पे रहेगी. सिर्फ ऊपर की प्लेट और ऊपर का थियोडोलाइट की पूरी बॉडी वो पूरी अबाउट घूमेगी. सो दैट इज द वन ऑफ द ऑपरेशन. और यदि हम लोग ऊपर का लॉक कर देते हैं और सिर्फ नीचे का खोलते हैं, तो नीचे का खोलने से पूरा लोअर प्लेट और अपर प्लेट के साथ में पूरा ऑब्जेक्ट हमारा घूमेगा. सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट स्क्रू ऑपरेशंस आर देयर. तो आपको कौन सी प्लेट लॉक रखना है और कौन सी प्लेट घुमाना है, तो यहाँ पे अपर क्लैम्प का ज़्यादा काम पड़ता है हमको रीडिंग लेने के लिए, क्योंकि हमको ऊपर का पार्ट घुमा के एंगल गिनना पड़ता. तो हम लोग अपर स्क्रू को लॉक करेंगे, अनलॉक करेंगे, लॉक करेंगे, अनलॉक करेंगे. लेकिन सिर्फ इंस्ट्रूमेंट को जब सेट करना होता है इनिशियली रीडिंग के ऊपर, तब हमको फिर लोअर स्क्रू को भी लूज करके हमको जीरो रीडिंग पे सेट करना है या किसी ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस करना है, तो उसके तरफ आप फोकस कर सकते हैं. सो फॉर दैट these two important operations we have to use the use of the upper clamp and lower clamp screw. So while doing the practical we can understand the actual operations of this. Now this type of instrument, अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा जिसके अंदर हमारा एक टेलीस्कोप लगा है, तो लेवलिंग के जैसा भी हम लोग स्टाफ रीडिंग लेने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. एक तो ये हो गया. पहला है उसको नीचे में वर्नियर की एंगल की प्लेट है, तो उसको यहाँ से ऐसा घुमाया हमने थियोडोलाइट को, यानी टेलीस्कोपिक ट्यूब घूम गई हमारी अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल एंगल मिल रहा है हमको, ये आड़ा ऐसा हॉरिजॉन्टल एंगल. तो हॉरिजॉन्टल एंगल गिनने के लिए भी हम लोग थियोडोलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके अलावा जो टेलीस्कोप है ऐसा उसको नीचे या ऊपर कर सकते, तो वर्टिकल एंगल भी गिन सकते हैं आप. सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ द थियोडोलाइट. सो लेट अस समराइज ऑल दीज यूजेस. द फर्स्ट यूज ऑफ द थियोडोलाइट दैट इज टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल, यानी इसका इस्तेमाल ही हम लोग वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इंस्ट्रूमेंट को घुमा सकते हैं. तो मैं ये टेलीस्कोप मेरा 0 डिग्री पे फिट करूंगा, इधर रखूंगा, और ऊपर का अपर क्लैम्प स्क्रू खोल के उसको घुमा दूंगा ऐसा, तो 0 जगह पे रह जाएगा मेरा, और ऊपर से मेरा एंगल घूम जाएगा सिर्फ ऊपर की प्लेट. तो अपर प्लेट घूमने की वजह से कितने एंगल से घुमाया मैंने उसको, उसका रीडिंग मेरे पास में आ जाएगा. सो दैट हॉरिजॉन्टल एंगल वी कैन मेजर. देन टू मेजर द वर्टिकल एंगल, तो इनिशियल में हम लोग क्या करते हैं कि हमारी टेलीस्कोपिक ट्यूब जो है, हमारा टेलीस्कोप एकदम हॉरिजॉन्टल रखते. तो हमारा जो वर्टिकल सर्कल है उसके अंदर भी 2 स्केल है हमारी, एक मेन स्केल और वर्नियर स्केल, दोनों के 0-0 मैच रहेंगे, तो अपना हॉरिजॉन्टल टेलीस्कोप रहेगा, तो एंगल रहेगा आपका इनिशियल 0. और फिर आपने टेलीस्कोप को ऊपर या नीचे किया, तो कितने डिग्री से नीचे किया या कितने डिग्री से ऊपर किया. सो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वर्टिकल एंगल कितना है वो भी हम लोग थियोडोलाइट से इस्तेमाल कर सकते हैं. सो यू कैन मेजर द वर्टिकल एंगल आल्सो बाय यूजिंग द थियोडोलाइट. देन टू मेजर द मैग्नेटिक बेयरिंग, दिस इज आल्सो पॉसिबल विद द थियोडोलाइट. जैसा कंपास का इस्तेमाल हमने किया बेयरिंग के लिए, वैसा मैं थियोडोलाइट का क्या करूंगा, तो मैं जो नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन के तरफ मेरा कंपास देखूंगा मैं, और कंपास से नॉर्थ डायरेक्शन जिधर दिख रही है उस जगह पे मैं एक रेंजिंग रॉड खड़ा कर दूंगा, और थियोडोलाइट को सेट करके थियोडोलाइट का टेलीस्कोप भी उसके तरफ भी करूंगा. तो मेरा टेलीस्कोप जो है वो 0 डिग्री पे ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन के ऊपर सेट हो जाएगा. सो टेलीस्कोप इज लुकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन एंड द रीडिंग इज 0 डिग्री. और फिर आपको जो सर्वे लाइन का बेयरिंग गिनना है, तो
तो आप टेलीस्कोप को ऐसा हॉरिजॉन्टल घुमा लो ऐसा, तो थियोडलाइट हॉरिजॉन्टल घुमाया आपने तो कितना हॉरिजॉन्टल एंगल है वो मिल गया, बट दैट एंगल इज विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन, सो दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक बियरिंग। तो थियोडलाइट का इस्तेमाल हम लोग बियरिंग गिनने के लिए भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो द अनदर इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द थियोडलाइट। इसका मतलब जो है मैग्नेटिक बियरिंग का इस्तेमाल हम लोग कंपास से कर रहे थे, सो हियर इंस्टेड ऑफ कंपास you can more accurately measure the magnetic bearing by using the theodolite। then यहाँ पे हम लोग वर्टिकल एंगल भी हम लोग गिन सक रहे और यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल भी गिन रहे, सो ऑल दैट इज पॉसिबल। देन टू मेजर द डायरेक्ट एंगल, अब ये डायरेक्ट टू मेजर द डायरेक्ट एंगल बोले तो दो सर्वे लाइन है हमारी, सो यहाँ से यहाँ तक ऐसा है और कितना एंगल है बीच में का, ये एंगल गिनना है तो डायरेक्टली हम लोग थियोडलाइट को रख के डायरेक्ट कोई भी एंगल हम लोग ताबड़तोड़ गिन सकते हैं। सो दैट इज अनदर। अब ये यहाँ पर डिफ्लेक्शन एंगल हो सकता है या फिर इंक्लूडेड एंगल हो सकता है या एक्सटर्नल एंगल हो सकता है, सो एंगल ऑफ डेविएशन हो सकता है, वॉट एवर द एंगल यू आर वांट टू मेजर, सो दैट यू कैन ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ थियोडलाइट। देन टू मेजर द डिफ्लेक्शन एंगल ऑल्सो, जैसा इंक्लूडेड एंगल गिनते हम लोग वैसा डिफ्लेक्शन एंगल भी हम लोग इससे गिन सकते हैं। देन टू प्रोलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, अब हमने रेंजिंग करने के लिए इसके पहले रेंजिंग रॉड का इस्तेमाल किया, तो एक रेंजिंग रॉड पहला और एक दूसरा आखिरी का, और उसके बीच में के रेंजिंग रॉड जो है वो आंखों से देख के हमने उसको एक लाइन में करके बराबर रेंजिंग किया था, तो उसके लिए लिमिटेशन है हमारा, आंखों से ज़्यादा दूर तक का फोकस करके हम लोग स्ट्रेट लाइन नहीं मिला सकते। लेकिन यदि हम लोग टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो टेलीस्कोप में से देख के सारे लाइन को एक स्ट्रेट लाइन में रेंजिंग रॉड हम लोग खड़े कर सकते। सो प्रोलॉन्गिंग ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ थियोडलाइट। या उसके अलावा मेरी एक सर्वे लाइन इधर से है और उसको इधर आगे बढ़ाना है, तो थियोडलाइट के अंदर का जो टेलीस्कोप है वो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट भी घूमता है, तो मैं पहले इधर के जो सर्वे के स्टेशंस है वहाँ पे सबके जगह रेंजिंग रॉड खड़े करके 1 2 3 4 सबको एक लाइन में लेकर आ जाऊँगा, यानी मेरा यहाँ पर थियोडलाइट रखा है और इधर में मैंने 4-5 रेंजिंग रॉड एक लाइन में लाके स्ट्रेट रेंजिंग कर दिया। अब ये लाइन को मुझे आगे इधर आगे बढ़ाना है, तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, जो टेलीस्कोप है उसको डायरेक्ट 180 डिग्री से घुमाऊंगा ऐसा, तो मेरा इधर देखने वाला टेलीस्कोप जो है ऐसा घुमा के ऊपर से इधर देखने लग जाएगा। अब इधर देखने लग जाएगा तो इधर भी मैं एक लाइन में रेंजिंग रॉड फिक्स कर सकता हूँ। सो व्हाट विल हैपन, ये इधर की जो रेंज लाइन थी उसको मैंने 180 डिग्री में इधर देख रोटेट करके थियोडलाइट को इधर भी सेट कर दिया। सो यू कैन प्रोलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है सर्वे के अंदर। लंबी लंबी सर्वे लाइन हमको सेट करना है तो रेंजिंग में ज़्यादा टाइम लगता है अपने को, उसके बजाय थियोडलाइट का इस्तेमाल करके एक्यूरेट रेंजिंग हम लोग ताबड़तोड़ कर सकते हैं। सो दैट इज द पॉसिबल। देन टू लोकेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स, ये एक और एडवांटेज है हमारे पास में कि कोई सर्वे लाइन एक लाइन जा रही है और दूसरी लाइन दूसरे लाइन से एक में को क्रॉस कर रही है, अब वो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे वो हमको पता करना है, तो आपको 2 थियोडलाइट रखने पड़ेंगे, एक उधर और एक इधर से। मैं इधर से ये सर्वे लाइन को देखूंगा, उधर से दूसरे सर्वे लाइन को देखेंगे, और एक रेंजिंग रॉड ऐसा खड़ा करने को बोलेंगे कि जो इधर से भी दिख रहा है और इधर से भी दिख रहा है, तो दोनों तरफ से यदि वो रेंजिंग रॉड दिखता है उसका मतलब वो इंटरसेक्शन के पॉइंट के ऊपर है। तो सर्वे लाइन का जो इंटरसेक्शन है वो भी हम लोग यहाँ से लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थियोडलाइट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ दैट। देन टू ले आउट द हॉरिजॉन्टल एंगल, जैसा हम लोग एंगल मेजर कर सकते हैं वैसा एंगल सेट करना है आपको फील्ड में। कोई एक आधा खेल का ग्राउंड आपको प्लाट करना है, तो खेल के ग्राउंड में आपको बराबर 90 डिग्री में रेक्टेंगल चाहिए या किसी एंगल पर्टिकुलर एंगल में ऐसे हमको 2 लाइन मार्क करना है, तो वो फील्ड के ऊपर यदि आपको ऐसा एंगल का मार्किंग करना है कोई तो भी, तो कंपास से तो पॉसिबल नहीं है, कंपास से सिर्फ बेयरिंग गिन सकते हैं हम लोग, बट थियोडलाइट का इस्तेमाल करके हम लोग बराबर मार्किंग कर सकते हैं फील्ड के अंदर। या फिर सर्कुलर बिल्डिंग है तो सर्कुलर बिल्डिंग है, आपको कॉलम का लेआउट ऐसे डालना पड़ेगा, बराबर कॉलम सर्कुलर में रहेंगे, तो वो एक लाइन में बराबर एक कंटिन्यूस रेडियस के ऊपर एक जैसे एंगल पे आना चाहिए स्पेसिंग पे कॉलम। सो इन सच केसेस आल्सो यू कैन यूज द थियोडलाइट। तो अलग अलग एंगल के लिए हम लोग ये थियोडलाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंगल सेट करने के लिए। सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड दैट। सो वी विल जस्ट वंस रिकॉल हॉरिजॉन्टल एंगल, यानी हमारा टॉप व्यू में यदि ये एक लाइन सर्वे लाइन है हमारी और ये दूसरी सर्वे लाइन है,
और यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल एंगल जो है, सो दिस एंगल ABC, ये हॉरिजॉन्टल एंगल, ये हम लोग मेजर कर सकते, दैट इज वन ऑफ द यूज. देन इफ सपोज दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल लाइन, सो दिस इज लाइन ऑफ साइट. अब लाइन ऑफ साइट के हिसाब से यदि आपका टेलीस्कोप ऐसा डाउनवर्ड है या फिर अपवर्ड है, तो ये एंगल या ए एंगल, सो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन. तो टेलीस्कोप ऊपर देख रहा है या नीचे देख रहा है, सो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन दैट मेजर वर्टिकल एंगल ऑल्सो यू कैन मेजर with the help of theodolite. Then to measure the magnetic bearing, यानी आप जो स्टेशन पे खड़े हैं, यहाँ पे समझ लो आपका नॉर्थ डायरेक्शन इधर है, तो आपको पहले टेलीस्कोप जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन के ऊपर फिक्स करना पड़ेगा आपका थियोडोलाइट, और फिर आपकी सर्वे लाइन इधर जा रही है तो इसको रोटेट करना पड़ेगा ऐसा. तो यहाँ से ये नॉर्थ डायरेक्शन के ऊपर 0 डिग्री का रीडिंग था, अब यहाँ पे आ गया आपका 48 डिग्री का, तो ये लाइन का जो बेयरिंग है ये हो गया 48 डिग्री का. सो यू कैन मेजर द बेयरिंग ऑफ द सर्वे लाइन. देन टू मेजर द डायरेक्ट एंगल, अब ये कोई भी एंगल ऐसा आपको सर्वे लाइन का एंगल गिनना है, या फिर आपकी लाइन ऐसी सर्वे लाइन ऐसी जा रही है तो आपको ये एंगल गिनना है, ये इधर का एंगल गिनना है, ये एंगल गिनना है. तो ऐसे कोई भी डायरेक्ट एंगल हम लोग गिन सकते. या फिर ये सर्वे लाइन मेरी ऐसी जा रही और अब मुझे सर्वे लाइन इधर लेके जाना है, तो ये डिफ्लेक्शन एंगल चाहिए मुझे, तो ये वाला डिफ्लेक्शन एंगल भी मैं गिन सकता हूँ यहाँ पर. सो दैट ऑल्सो यू कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट. देन यू कैन ऑल्सो प्रोलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, सो दैट ऑलरेडी वी हैव सीन नाउ हियर. सो हियर टू प्रोलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, सपोज हमने यहाँ पर एक हमारा थियोडोलाइट ऐसा सेट कर दिया, सो दिस द स्टेशन पॉइंट, और इधर में हमको एक लाइन ऐसी सेट करना है. अब ये लाइन में मैंने 1 2 3 ऐसे 4 अलग अलग पॉइंट के ऊपर रेंजिंग रॉड फिक्स कर दिए. अब ये जो सर्वे लाइन है, ये सर्वे लाइन मुझे इधर एक्सटेंड करना है, तो मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करके इधर भी फिक्स कर सकता हूँ और इधर भी रेंजिंग रॉड लगा सकता हूँ. सो स्ट्रेट लाइन को प्रोलॉन्ग करने के लिए भी हम लोग थियोडोलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. देन यू कैन लोकेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी जैसा मैंने आपको बताया एक्सप्लेन करके. सो यू कैन अब ये एक सर्वे लाइन हमारी ऐसी जा रही और एक ऐसी जा रही है, और ये जो पॉइंट है ये लोकेट करना है मुझे, तो मैं एक थियोडोलाइट यहाँ पर रखूंगा मेरा, और यहाँ से मैं इधर देखूंगा और यहाँ से इधर देखूंगा, और एक रेंजिंग रॉड यहाँ पे लेके खड़ा रहूंगा ताकि वो ये थियोडोलाइट से भी दिखे, इधर से भी दिखेंगे. तो ये जो पॉइंट है ये लोकेट कर सकता हूँ मैं. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी लोकेटेड बाय यूजिंग द थियोडोलाइट. एंड यू कैन ऑल्सो ले डाउन द हॉरिजॉन्टल एंगल, यानी आपको किसी ने बताया कि मुझे 43 डिग्री 30 मिनट का एंगल सेट करना है, और ये मेरी एक लाइन है स्ट्रेट, और इसके ऊपर अभी मुझे इधर की लाइन 43 डिग्री पे चाहिए, तो मैं ये एंगल के ऊपर सेट कर सकता हूँ. पहले थियोडोलाइट को मैं ये एंगल के ऊपर सेट कर सकता हूँ, और बाद में उसको रोटेट करके फिर इसके ऊपर रीडिंग लेके मैं बराबर इधर कहाँ डायरेक्शन रहेगी मेरी थियोडोलाइट की वो सेट कर सकता हूँ. एंड ये गिवन एंगल, इसके लिए मुझे रेंजिंग रॉड कहाँ रखना पड़ेगा ये लोकेशन मैं पता कर सकता हूँ. सो ऑल दीज आर द ऑपरेशंस दैट यू कैन यूज. सो थियोडोलाइट इज वर्सिटल मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट, एंड दीज आर द यूजेस ऑफ द थियोडोलाइट in the surveying. So here when we understand this, so there are important fundamental lines of the theodolite. अब ये theodolite जो है ये horizontal axis के अबाउट भी घूमता है और vertical axis के अबाउट भी घूमता है. So these are the different fundamental lines are there. So there are 4 main fundamental lines of the theodolite. तो सबसे पहला है हमारा vertical axis. So here this vertical axis is about which the instrument can rotate. अब ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है ये ऐसा वर्टिकल एक्सिस के अबाउट पूरा घूमता है ऐसा. सो दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल एक्सिस. सो लोअर प्लेट एंड द अपर प्लेट रोटेट्स अबाउट द वर्टिकल एक्सिस. ये नीचे की जो ये बताया मैंने आपको इसके पहले भी, दिस इज अपर प्लेट एंड उसके नीचे में लोअर प्लेट है, ये वाली लोअर प्लेट है. सो दिस 2 प्लेट्स दे आर रोटेटिंग अबाउट द वर्टिकल एक्सिस. सो दैट इज द वन ऑफ द axis of the theodolite. Then another axis is horizontal axis. The horizontal, or it is also called as Trunnion axis. So it is the axis about which the telescope and the vertical
टेलीस्कोप रोटेट्स अबाउट द वर्टिकल प्लेन, यानी ये जो टेलीस्कोप है ये वाला, ये ऐसा गोल गोल घूम रहा है, तो ये जो पॉइंट है हमारा सेंटर पॉइंट, यहाँ पर हमारा ऐसा होरिजेंटल एक्सिस है. सो अबाउट द होरिजेंटल एक्सिस टेलीस्कोप रोटेट्स, सो दैट इज कॉल्ड एज होरिजेंटल एक्सिस. तो ये होरिजेंटल एक्सिस हमारा वर्टिकल एक्सिस को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा. वर्टिकल एक्सिस वर्टिकल है और होरिजेंटल एक्सिस होरिजेंटल है, सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एंड देन लाइन ऑफ साइट, अब ये जो होरिजेंटल एक्सिस हमारा ऐसा है, अब टेलीस्कोप के सेंटर में से जाने वाली एक लाइन और रहेगी हमारी. सो दिस इज द लाइन ऑफ कॉलिमेशन. सो लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द आई पीस एंड सेंटर ऑफ द बबल ट्यूब, इसमें से जो लाने वाली लाइन है ये हमारी हो गई लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशन. द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द होरिजेंटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास. तो होरिजेंटल वर्टिकल एक्सिस, होरिजेंटल एक्सिस और उसके बीच में से पास होने वाली लाइन जो टेलीस्कोप के सेंटर में से जा रही है, सो दैट इज अनदर लाइन, दैट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट. एंड देन थर्ड इज एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब. सो इट इज द स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडिनल कर्व ऑफ द लेवल ट्यूब एंड एट इट्स सेंटर इट इज होरिजेंटल. अब यहाँ पे इसको एक बबल ट्यूब यहाँ पे प्लेट के ऊपर लगी हुई है, एक बबल ट्यूब यहाँ पर भी लगी हुई है. तो ये बबल ट्यूब को जो पैरेलल एक्सिस है वो हो गया हमारा एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब. तो ये एक्सिस जो है ये हमारे टेलीस्कोप की ट्यूब को भी पैरेलल होना चाहिए. सो दैट वी हैव टू इंश्योर. तो इस प्रकार से आपके 4 एक्सिस हो रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर थियोडलाइट के अंदर, और ये चारों भी एक्सिस जो है वो एक में को परपेंडिकुलर है. सो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ दीज आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर. So there is distinct relationship between this axis of the theodolite. तो सबसे पहला रिलेशन है हमारा द एक्सिस ऑफ द प्लेट लेवल मस्ट लाई इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस. यानी हमारा जो वर्टिकल एक्सिस है इसको जो होरिजेंटल प्लेन है उसमें ही हमारी प्लेट लेवल, एक्सिस ऑफ द प्लेट लेवल रहनी चाहिए. प्लेट लेवल का मतलब जो हमारा होरिजेंटल ये यहाँ पर प्लेट लेवल, ऊपर प्लेट, यहाँ पर एक बबल ट्यूब लगी हुई है यहाँ पर. दिस इज द बबल ट्यूब. सो दिस इज द बबल ट्यूब ऑन द प्लेट लेवल, यानी होरिजेंटल प्लेट जो है उसके ऊपर जो बबल ट्यूब रहती है उसका जो एक्सिस है वो एक्सिस वर्टिकल एक्सिस को परपेंडिकुलर होना चाहिए. सो दैट इज द वन कंडीशन वी हैव टू रिमेंबर. सो द एक्सिस ऑफ द प्लेट लेवल मस्ट लाई ऑन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस. दूसरा है द लाइन ऑफ कॉलिमेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द होरिजेंटल एक्सिस. होरिजेंटल एक्सिस हमारा ऐसा है जिसके अबाउट हमारा रोटेट हो रहा है टेलीस्कोप, तो होरिजेंटल एक्सिस को परपेंडिकुलर होना चाहिए हमारा लाइन ऑफ साइट. तो ये एक दूसरा रिलेशन हो गया हमारा. यानी यहाँ पर हम लोग यदि देखेंगे तो ये हो गया हमारा होरिजेंटल एक्सिस. सो दिस इज आवर होरिजेंटल एक्सिस, ये वाला, और ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट. तो ये लाइन ऑफ साइट होरिजेंटल एक्सिस को परपेंडिकुलर है, दैट वी हैव टू रिमेंबर. सिमिलरली जो हमारा बबल ट्यूब एक बबल ट्यूब का एक्सिस जो है, यानी ये बबल ट्यूब का एक्सिस है हमारा होरिजेंटल बबल ट्यूब का, और ये वर्टिकल एक्सिस है, तो वर्टिकल एक्सिस को बबल ट्यूब भी है परपेंडिकुलर है बराबर. सो दैट इज नंबर 1 रिलेशन. नंबर 2 इज ये लाइन ऑफ साइट शुड बी परपेंडिकुलर टू द होरिजेंटल एक्सिस. देन होरिजेंटल एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, यानी ये होरिजेंटल एक्सिस ये वर्टिकल एक्सिस को भी परपेंडिकुलर होना चाहिए. सो दिस इज थर्ड रिलेशन. तो ये 1 नंबर वाला रिलेशन ये हो गया हमारा, 2 नंबर वाला हो गया रिलेशन ये वाला, और ये हो गया 3 नंबर का रिलेशन. होरिजेंटल एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस. देन द एक्सिस ऑफ द अल्टीट्यूड लेवल ऑफ द टेलीस्कोप लेवल मस्ट बी पैरेलल टू द लाइन ऑफ कॉलिमेशन. अब ये जो टेलीस्कोपिक बबल ट्यूब है इसके ऊपर हमारा जो स्पिरिट लेवल लगी होती है, तो स्पिरिट लेवल की लाइन जो है वो होरिजेंटल टेलीस्कोप के लाइन को पैरेलल चाहिए. सो अल्टीट्यूड बबल ट्यूब की लेवल लाइन ऑफ साइट को पैरेलल चाहिए. देन द वर्टिकल सर्कल वर्नियर मस्ट बी रीड 0 व्हेन द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज होरिजेंटल. अब जब ये लाइन ऑफ साइट हमारी होरिजेंटल है इसका मतलब जो वर्टिकल सर्कल है ना इसके ऊपर रीडिंग हमारा 0 डिग्री का होना चाहिए. यानी जब टेलीस्कोप ऐसा होरिजेंटल रख रहे तो वर्टिकल सर्कल के ऊपर रीडिंग देखेंगे तो 0 डिग्री या 180 डिग्री ऐसी रीडिंग देखने को ना हमको. इसका मतलब हमारा परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बराबर होरिजेंटल लगा है हमारा. एंड देन द एक्सिस ऑफ द स्ट्राइडिंग लेवल मस्ट बी पैरेलल टू द होरिजेंटल एक्सिस.
यानी यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये टेलीस्कोप के ऊपर और एक ऐसी परपेंडिकुलर बबल ट्यूब होती है ऐसी, सो वो परपेंडिकुलर बबल ट्यूब की जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को पैरेलल होनी चाहिए। इसका मतलब जो टेलीस्कोप है ये बराबर एग्जैक्टली हमारा वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को परपेंडिकुलर में है। सो फॉर दैट, सो दीज आर द 6 इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द एक्सिस ऑफ द डिफरेंट एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप। तो वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लाइन ऑफ साइट, ये तो 3 लाइन हो गई हमारी। उसके अलावा ये अल्टीट्यूड बबल ट्यूब की लाइन चौथी लाइन हो गई, और ये प्लेट लेवल की लाइन ये 5वीं लाइन हो गई। तो ये सारे लाइन एक में को बराबर परपेंडिकुलर है। सो दिस रिलेशन वी हैव टू रिमेंबर इन केस ऑफ द यूज ऑफ द थियोडलाइट। So here in this lesson 1 we have seen the various component parts of the theodolite, then we have seen what are various uses of the theodolite, and then we have seen the what are the fundamental lines of the theodolite are there and what are the relation between them. Now actually how we can use this theodolite for various operation, that we are learning in this unit. So in the forthcoming lecture we will learn all about the use and operation of the theodolite. So till then, thank you for listening to this lecture. Goodbye, see you in the next lecture. Thank you.